Ready, all of you? Then open your book. चैप्टर हमारा पूरा हो गया था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, लेसन नंबर 3, and we'll discuss the question answers and we'll start another lesson. Enthrall means the state of being in someone's power. Depredations, I think question answers हो गए थे इसके. Yes. So we have to start lesson number 4. Open page number 19. Yes, page number 19. In the kingdom of fools. ये स्टोरी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी. इट्स अ वेरी सिंपल स्टोरी. हिंदी में भी शायद पढ़ी होगी. In the kingdom of fools, it is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in this story? What happens to them? तो ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं वो इतने खतरनाक होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग ही उनको मैनेज कर सकते हैं, उनको हैंडल कर सकते हैं. So let us read in this story what happens to the fools and who are the fools in the story. In the kingdom of fools, both the king and the minister were idiots. अंधेर नगरी चौपट राजा, जो आप लोगों ने पढ़ी होगी कहानी हिंदी में, तो सेम story is here. In the kingdom of fools, both the king and the ministers were idiots. They didn't want to run things like other kings, so they decided to change night into day and day into night. They ordered that everyone should be awake at night, till their fields, and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. So, ये मूर्खों की नगरी में यानी किंगडम ऑफ फूल्स, किंग और मिनिस्टर दोनों ही मूर्ख थे, और इसीलिए वो वैसे नहीं करना चाहते थे जैसे बाकी लोग राजा लोग राज्य करते हैं. कुछ ना कुछ उनको उल्टा सीधा करना था. सो दे चेंज्ड नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट. तो उन्होंने दिन को रात में बदल दिया और रात को दिन में, यानी कि उन्होंने अपने किंगडम में सभी को ऑर्डर दिया कि सब लोग रात को काम करेंगे, जितना भी उनका फील्ड्स का काम है या खेतों का काम है या बिजनेस का काम है, तो दैट विल बी डन ओनली एट नाइट, एंड दे विल गो टू बेड एज सून एज द सन केम अप. और दिन में सोएंगे जैसे कि हम लोग करते हैं कि दिन में काम करते हैं और रात को सोते हैं, तो उसने उल्टा कर दिया. एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ. और जो ये ऑर्डर नहीं मानेगा उसको डेथ की पनिशमेंट मिलेगी. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब इस डर से लोगों ने जैसा कहा गया था वैसा करना स्टार्ट कर दिया. The king and the minister were delighted at the success of their project. One day, a guru and his disciple arrived in the city. It was a beautiful city. It was broad daylight, but there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. Even the cattle had been taught to sleep by day. The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening.
when suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. So किंग और मिनिस्टर बहुत खुश थे कि उनका जो ये प्रोजेक्ट है वो काम कर रहा है। एक दिन एक गुरु और उसका चेला, उसका शिष्य उस सिटी में आए। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। दिन का समय था लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे कि जो मवेशियां हैं, कैटल है, उनको भी दिन में सोना सिखा दिया गया है। एंड इवन द एनिमल्स वर नॉट सीन, नॉट अ सिंगल माउस was seen there. The two strangers were very much amazed by what they saw. They were wondering that what is happening in the city, why no one is seen anywhere. The two men were hungry. Now that the shops were open, they went to buy some groceries. To their astonishment, they found that everything cost the same, a single dudu. Whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas, it cost a dudu. The Guru and his disciple were very delighted. They had never heard of anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. So, जैसे ही शाम हुई, वहां की शॉप्स वगैरह खुलना चालू हो गई। एंड उन दोनों को बहुत तेज भूख लगी थी। और अब जब दुकानें खुल गई थी तो वो उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदने का सोचा। और टू देयर एस्टॉनिशमेंट, दैट मीन्स उनका बहुत हैरानी हुई उनको कि सबकी प्राइस सेम थी। अ सिंगल डूडू, यानी कि एक आना जिसको बोलते हैं। तो चाहे वो चावल खरीदें या बनाना खरीदें या कुछ भी खरीदें, सब कुछ, सबकी कीमत सिमिलर थी, कॉस्ट सबकी सेम थी, यानी कि एक आना। गुरु और शिष्य बहुत खुश हुए क्योंकि इस तरह की कोई चीज ना उन्होंने कभी देखी थी ना सुनी थी कि वो सारा खाना, जितने भी फूड आइटम्स थे, दे कुड बाय फॉर अ रूपी। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन, जो कुछ उन्हें चाहिए था सब 1 रुपए में उन्होंने खरीदा और खाना बनाया। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be a good idea for them to stay there. This is no place for us, let's go, he said to his disciple. But the disciple didn't want to leave the place. Everything was cheap here. All he wanted was good, cheap food. और जब उन्होंने खाना बना करके खा लिया तो गुरु को रियलाइज हुआ कि ये मूर्खों की नगरी है और अच्छा आइडिया नहीं होगा यहाँ पर रुकना, क्योंकि मूर्खों की नगरी में मूर्ख लोग क्या करेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ही सेड टू हिज डिसाइपल कि ये हमारे लिए जगह ये उचित नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन जो डिसाइपल था वो उस जगह को नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत सस्ता था। एंड ऑल ही वांटेड, ही वाज वेरी वेरी मच फूडी। तो उसको सिर्फ सस्ता और अच्छा खाना चाहिए था। That is why he did not want to leave the place. The Guru said, they are all fools. They won't last very long. This won't last very long, and you can't tell what they'll do to you next. But the disciple wouldn't listen to the Guru's wisdom. He wanted to stay. The Guru finally gave up and said, do what you want, I'm going, and left. The disciple stayed on, ate his fill every day, bananas and ghee and rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull. और गुरु ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये मूर्खों की नगरी है, सब मूर्ख लोग हैं और पता नहीं ये कब क्या करेंगे। लेकिन जो शिष्य था, डिसाइपल था, वो सुनने के लिए तैयार नहीं था और उसको वहीं रुकना था। तो गुरु ने फाइनली उसको कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो। एंड ही लेफ्ट फ्रॉम देयर, वो वहां से चले गए। जो चेला था वो वहीं रुक गया। हर रोज भर पेट वो खाता आराम से क्योंकि सब कुछ वहां पर एक आने में मिलता था, यानी कि जो उस टाइम का सिक्का चलता था, 1 डूडू। बनानास, घी, राइस, व्हीट, सब कुछ बहुत सस्ता था। और वो रोजाना खा खा करके इतना मोटा हो गया जैसे कि स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, जो सांड होता है, बैल। One bright day, a thief broke into a rich merchant's house.
He had made a hole in the wall and sneaked in. And as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. His brother ran to the king and complained, Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blame. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. और एक दिन एक चोर एक व्यापारी के घर में घुसा। उसने दीवार में एक छेद बनाया था, उसमें से होकर के वो अंदर गया चोरी करने के लिए। और जब वो लूट का सामान वहां से सब कुछ लूट करके उसी छेद के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो जो पुरानी दीवार थी, वो घर काफी पुराना हो चुका था, तो वो दीवार गिर गई और वो वहीं मर गया। उसका जो भाई था वो राजा के पास गया शिकायत करने कि when my brother was pursuing his ancient trade, यानी कि जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी जो धंधा है, काम है, वो कर रहा था, तो ये इसके घर की दीवार उस पर गिर गई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। इसलिए इस व्यापारी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसको एक बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग दीवार बनानी चाहिए थी और इसने गलत किया है। रॉन्ग डूअर यानी कि ये इसकी गलती है। कंपनसेट यानी कि हर्जाना भरना या जुर्माना भरना। तो फाइनली हमारे जो परिवार को इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए इस अन्याय के लिए। द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस। और राजा ने कहा कि बिल्कुल न्याय होगा और इस घर के मालिक को बुलाया जाए। When the merchant arrived, the king questioned him, What's your name? Such and such, your highness. Were you at home when the dead man burgled your house? Yes, my lord, he broke in and the wall was weak, it fell on him. The accused pleads guilty. Your wall killed this man's brother. You have murdered a man. We have to punish you. Lord, said the helpless merchant, I don't put up the wall. It's really the fault of the man who built the wall. He didn't build. Who is that? My lord, this wall was built in my father's time. I know the man. He's an old man now. He lives nearby. The king sent out messengers to bring in the bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब उस व्यापारी को बुलाया गया। राजा ने उससे उसका नाम पूछा और उससे पूछा कि क्या तुम घर में थे जब इस आदमी का भाई तुम्हारे घर में घुसा था? एंड ही सेड यस। वो अंदर आया, दीवार कमजोर थी, वो उसके ऊपर गिर गई। राजा ने कहा कि इसका मतलब जो तुम्हारी गलती है, तुम्हारी दीवार ने इस आदमी के भाई को मार दिया, यानी कि तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है, उसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी। अब वो बेचारा जो व्यापारी था वो हेल्पलेसली बोला कि लेकिन मैंने दीवार नहीं बनाई। यस, तो ही सेड कि उस आदमी की गलती है जिसने दीवार बनाई, उसने सही नहीं बनाई, तो आपको उसको पनिशमेंट देनी चाहिए। और जब उसने पूछा कि हु इज दैट, तो उसने कहा कि ये घर मेरे फादर के टाइम में बना था, यानी मेरे फादर ने इसको बनवाया था और अब तो वो आदमी बूढ़ा हो चुका है जिसने ये दीवार बनाई थी, बट ही लिव्स नियर बाय, पास में ही वो रहता है। राजा के आदमी गए और उस ब्रिक लेयर को, यानी वो जो मिस्त्री था जिसने की दीवार बनाई थी, वो घर बनाया था, तो उसको बांध करके ले आए। You there, did you build this man's wall in his father's time? Yes, my lord, I did. What kind of a wall is this that you built? It has fallen on a poor man and killed him. You've murdered him. We have to punish you by death. और फिर राजा ने उससे कहा कि तुमने ऐसी दीवार बनाई जो कमजोर थी, इसने एक गरीब आदमी की जान ले ली, यानी कि तुमने एक मर्डर किया है, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। Before the king could order the execution, the poor bricklayer pleaded, Please listen to me before you give your orders. It's true I built this wall and it was no good.
but that was because my mind was not on it. I remember very well a dancing girl who was going up and down that street all day with her anklets jingling, and I couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl. I know where she lives. और एग्जीक्यूशन यानी फांसी की सजा देना, मौत की सजा देना। तो इससे पहले कि राजा उसको फांसी की सजा सुनाता, वो बेचारा जो मिस्त्री था गरीब, उसने प्लीडेड यानी उसने प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि आप कोई भी ऑर्डर देने से पहले एक बार मेरी बात सुन लें। ये सही है कि ये दीवार मैंने बनाई है और ये अच्छी नहीं है, पर ये अच्छी इसलिए नहीं बनी क्योंकि उस दिन मेरा दिमाग कंसंट्रेशन जो है वो इस दीवार को बनाने में नहीं था। बिकॉज एक डांसिंग गर्ल बार बार उस सड़क पर आ जा रही थी और उसके घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, एंकलेट जिंगलिंग, जो घुंघरू थे वो बज रहे थे। तो मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाया, कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसलिए गलती मेरी नहीं है, उस लड़की की है जिसने मेरा ध्यान भंग किया। और वो कहाँ रहती है मैं जानता हूँ। यू आर राइट, द केस डीपन, we must look into it. It is not easy to judge such complicated cases. Let's get the dancer wherever she is. और राजा ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये केस तो और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है, उलझता जा रहा है, और इस तरह के उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल केसेस को सुलझाना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन हम इसको पूरा न्याय इसमें करेंगे। So let's call the dancer. The dancing girl, now an old woman, came trembling to the court. Did you move up and down that street many years ago while this poor man was building a wall? Did you see him? Yes, my lord, I remember it very well. So you did walk up and down with your anklets jingling. You were young and you distracted him. So he built a bad wall. उसने उस लड़की से पूछा जो कि अब एक बूढ़ी औरत हो चुकी थी। तो वो बेचारी कांपती हुई कोर्ट में आई और उसने जब पूछा कि क्या तुम बार बार कई सालों पहले जब ये आदमी दीवार बना रहा था तो क्या तुम वहां से कई बार निकली थी? तो उसने कहा कि हाँ, मुझे याद है अच्छे से। तो राजा ने कहा कि ठीक है, बार बार आने जाने की वजह से तुम्हारे जो घुंघरू बज रहे थे उससे उस वक्त तुम यंग थी और तुमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया यानी इसका ध्यान भंग किया, इसलिए इसने ये ऐसी दीवार बनाई। It has fallen on a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. Then he said कि तुम्हारी वजह से एक गरीब आदमी मारा गया और इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी। He thought for a minute and said, "My lord, wait. I know now why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, and so on all day. He made me walk up and down to his house a dozen times. That was when this bricklayer saw me. It's not my fault, my lord. It is the damn goldsmith's fault." और थोड़ी देर तक वो सोचती रही, फिर उसने कहा कि एक मिनट आप इंतजार करिए सजा सुनाने से पहले। और मुझे याद आ गया है कि मैं बार बार उस स्ट्रीट पर उस दिन क्यों निकली थी, क्योंकि मैंने गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार को थोड़ा सोना दिया था ज्वेलरी बनाने के लिए, एक ऑर्डर किया था ज्वेलरी के लिए, और वो बहुत आलसी था, बदमाश स्काउंड्रल। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेस, वो बहुत सारे बहाने बनाता रहा और बार बार बोलता रहा कि अभी दे देगा, आधा घंटे में दे देगा, एक घंटे में दे देगा तैयार करके। तो इसलिए मुझे बार बार उसके घर जाना पड़ा। तो इसलिए ये मेरी गलती नहीं है बल्कि उस गोल्ड स्मिथ की गलती है। पुअर थिंग, ही इज एब्सोल्युटली राइट, थॉट द किंग, weighing the evidence. We've got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. और फिर राजा ने कहा
कि हाँ ये बेचारी बिल्कुल सही बोल रही है। और एविडेंस यानी सबूत को ध्यान में रखते हुए राजा ने सोचा आखिर फाइनली हमको जो असली अपराधी है, रियल कल्प्रेट यानी कि जो असली दोषी है, वो हमें मिल गया। वो गोल्डस्मिथ है और जहां कहीं भी है उसको तुरंत ढूंढकर लाया जाए। द किंग्स bailiff searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. और राजा के जो सिपाही थे वो उसको ढूंढने गए। वो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। जब उसने अपने ऊपर लगे हुए आरोप, एक्यूजेशन मीन्स इल्जाम, आरोप सुने, तो उसके पास भी उसकी अपनी कहानी थी जो उसने सुनाई। माय लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर goldsmith. It's true I made this dancer come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. और उसने अपनी कहानी सुनाई कि हाँ ये बिल्कुल सही है कि इसको मैंने कई बार बुलाया, बहाने बनाए कि मैं अभी उसकी ज्वेलरी दे दूंगा, लेकिन असली रीजन ये था कि मैं उसकी ज्वेलरी टाइम पर नहीं बना पाया क्योंकि मैं एक रिच मर्चेंट के ऑर्डर्स को फुलफिल करने में लगा हुआ था। एक रिच व्यापारी का ऑर्डर मेरे पास था, उनके घर में शादी थी और वो लोग इंतजार नहीं करते। तो आप तो जानते ही हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंट यानी अधीर होते हैं, वो वेट नहीं करते हैं। इसलिए उनका ऑर्डर पहले पूरा करके देने के वजह से इसका ऑर्डर मैं टाइम पर नहीं कर पाया। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? एंड फाइनली उसने कहा कि वो कौन सा रिच मर्चेंट है, कौन है वो जिसने कि तुम्हें इस बेचारी औरत का काम पूरा नहीं करने दिया, उसको बार बार तुमने बुलाया, जिससे कि ब्रिक लेयर यानी मिस्त्री का ध्यान भंग हुआ, जिससे कि उसने अच्छी दीवार नहीं बनाई, वो दीवार एक इनोसेंट, एक बेगुनाह आदमी पर गिर गई, उसको और उसकी डेथ हो गई। So what is his name? The goldsmith named the merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. Now justice had come full circle, thought the king, back to the merchant. When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying, "It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead, I am innocent." और फाइनली गोल्डस्मिथ ने जो नाम बताया तो वो वही मर्चेंट था जिसके घर की दीवार गिरी थी और जिसको सबसे पहले कोर्ट में पेश किया गया था दरबार में, जिसके घर की दीवार गिरने की वजह से उस चोर की डेथ हुई थी। और फिर राजा ने सोचा कि देखो न्याय कितना सच्चा होता है, घूम फिर करके वापस वहीं पर बात आ गई। तो इसका मतलब तो वो व्यापारी ही असली अपराधी है, असली दोषी है। तो उसको अब कोर्ट में दोबारा बुलाया गया और वो रोते हुए आया बेचारा। उसने आकर के बोला कि दरअसल घर जो है वो मेरे फादर ने बनवाया था और ज्वेलरी का ऑर्डर भी उन्होंने ही दिया था, तो ये असली दोषी वो हुए मेरे फादर, मैं नहीं। एंड मेरे फादर की अब डेथ हो चुकी है, तो माय फादर वाज द कल्प्रिट, बट नाउ ही इज डेड एंड आई एम इनोसेंट। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड decisively. It's true your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I knew at once, even when I first set eyes on you, that you were at the root of this horrible crime. You must die. और किंग ने, राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह ली, डिस्कशन किया और फिर उसने कहा कि ठीक है, तुम्हारे पिता दोषी थे, ही वॉज द ट्रू मर्डरर और उनकी डेथ हो चुकी है,
लेकिन किसी ना किसी को तो उनकी जगह पर सजा मिलेगी। और तुमने विरासत में उनसे सब कुछ लिया है, यानी कि जो कुछ भी तुम्हारे फादर ने छोड़ा है वो सब अब तुम्हारे काम में आ रहा है। तुमने सब कुछ उनसे विरासत में तुम्हें मिला है, तो उनकी दौलत अगर तुम इस्तेमाल कर रहे हो तो उनके पाप भी तुम्हें भुगतने पड़ेंगे। और मैं तभी समझ गया था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था कि तुम ही दरअसल अपराधी हो, और सब जितना भी ये अपराध हुआ है उसकी जड़ तुम ही हो। तो यू मस्ट डाई। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appealed to the king's common sense. The king too worried about it. और राजा ने ऑर्डर दे दिया कि न्यू स्टेक यानी नया फांसी का फंदा तैयार किया जाए ताकि इसको फांसी की सजा सुनाई जा सके। तो जैसे ही सर्वेंट्स वो स्टेक स्टेक मीन्स फंदा जो फांसी लगाने के लिए यूज किया जाता है फांसी देने के लिए, तो जैसे ही वो बनकर के तैयार हुआ और मिनिस्टर ने उसको देखा तो उसको लगा कि जो रिच मर्चेंट है वो तो बहुत दुबला पतला है और जो फंदा है वो बहुत बड़ा है, तो वो उसके अंदर फिट नहीं होगा। उसने ये बात राजा को बताई तो राजा भी चिंता में पड़ गया। What shall we do? He said, when suddenly it struck him that all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. और फिर वो लोग सोचने लगे कि अब हमको क्या करना चाहिए। तो फाइनली एक आइडिया उन लोगों को आया और उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा आदमी ढूंढा जाए जो इस स्टेक यानी इस फंदे में फिट हो सके, जो बहुत मोटा तगड़ा हो, जो इस फंदे के अंदर फिट हो जाए। और तुरंत सर्वेंट्स को भेज दिया गया पूरे शहर में ढूंढने के लिए। एंड उन लोगों की नजरें उस शिष्य पर पड़ी, उस डिसाइपल पर, जो इतने दिनों से बनाना राइस व्हीट घी खा खा करके बहुत मोटा हो चुका था। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इसको। एंड टिल नाउ एनी प्रॉब्लम, डू यू वांट टू आस्क अबाउट एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? Then read lesson 4, read this lesson again and underline the hard words which you want to ask. जो नहीं आते हैं उनको अंडरलाइन करना है और मुझसे पूछना है before I begin the next class. Is it clear?
Okay then. Goodbye till then.